وفاق نے مالی بحران ہونے کے باوجود پنجاب پر نیا بوجھ ڈال دیا۔ پنجاب کو نئے مالی سال میں 55 ارب روپے کے غیر ملکی اور قرض ادا کرنے کا حکم۔ رواں سال بھی پنجاب حکومت نے 50 ارب کے ٹارگٹ پر 47 ارب روپے قرض کی ادائیگی کی۔ مہنگا آٹا اور سستی چینی کا بحران، ویئر ہاؤسز خالی، سپلائی منقطع۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹے کے بعد چینی بھی غائب، خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس واپسی۔ شہریوں کا حکومت سے اشیاء خورونوش کی دستیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کی حکمت عملی حکومتی عدم دلچسپی کی نظر۔ کورونا کے سبب معطل کی جانے والی آن لائن قیمت ایپ سروس تاحال بحال نہیں کی جا سکی۔ آن لائن ایپ کی مدد سے 2 کمپنی سرکاری قیمت پر اشیاء ضروریہ کی ڈیلیوری کے روزانہ سینکڑوں آرڈرز کامیابی سے بھگتا رہی تھی۔ افواہوں کا شور تھم گیا، 10ویں جماعت کے پرچوں کی چیکنگ 29 جون سے کرانے کا فیصلہ۔ 3 ماہ میں مارکنگ کا عمل مکمل کر کے اکتوبر کے آغاز میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ کورونا کمیٹی برائے کابینہ کی ہدایات پر پرچوں کی چیکنگ کے لیے SOPs تیار۔ ایگزامینر سمیت دیگر عملے کے لیے فیس ماسک، گلوز اور 6 فٹ کا سماجی فاصلہ لازمی۔ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنے، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے پر پابندی ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے لیے حکومتی تیاریاں نامکمل، جانوروں کی منڈیوں سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ شہری اور مویشیوں کے تاجر غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ ضلعی حکام کی جانب سے شہر سے باہر سلاٹر ہاؤسز سمیت 7 منڈیوں کی تجویز۔ جانوروں کی خریداری اور فروغ سے لے کر شہر لانے اور قربانی تک کے SOPs کی تیاری پر کام جاری ہے۔ سونے نے تمام ریکارڈز توڑ دیے، صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونا 1500 روپے مزید مہنگا۔ 24 کیرات کی تولہ سونا 1,05,400 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام چاندی کی قیمت 1040 روپے۔ جولرز برادری اور صارفین سونے کی بڑھتی قیمتوں پر پریشان، صرافہ بازار ویران ہو گئے۔ محکمہ خزانہ نے پیف کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ فنڈز تعلیمی اداروں کے لیے سیلری اور نان سیلری اخراجات کی مد میں جاری کیے گئے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز کا اجرا کئی روز سے تاخیر کا شکار تھا۔ مالی بحران کے سبب سیکیورٹی لحاظ سے اہم اداروں کے بجٹ کی بھی کٹوتی۔ پنجاب حکومت نے اسپیشل برانچ اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا بجٹ بھی کم کر دیا۔ 2 ارب 55 کروڑ کے قرض سے سیکیورٹی امور اور غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی اقدامات متاثر ہونے کا خدشہ۔ کورونا وبا کے دوران میٹرو بس کو حکومتی عدم دلچسپی کھا گئی۔ 3 ماہ سے سروس معطل، کمپنی کا دیوالیہ ہونے کے قریب۔ مالی خسارہ بڑھ کر 35 کروڑ 88 لاکھ تک پہنچ گیا۔ 1,30,000 مسافر سستی سفری سہولیات سے بھی محروم۔ کورونا کے خلاف جنگ میں شریک 5,000 نرسز 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ PPSC کے تحت بھرتی ہونے والی نرسز کو مارچ میں ڈیوٹی پر مامور کیا گیا۔ اسناد کی تصدیق اور دیگر دستاویزی عمل مکمل نہ ہونے سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ ڈی جے نرسنگ کوثر پروین کہتی ہیں جلد پروسیس مکمل کر کے تنخواہوں کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ پنجاب پولیس بجلی بلوں کی مد میں 14 کروڑ کی نہ دہندہ۔ 478 تھانوں اور رہائشی یونٹس کے بل ادا نہ کرنے پر لیسکو نے کنیکشنز کاٹنے کی وارننگ جاری کر دی۔ آج ہی پنجاب کے نام مراسلے میں بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 10 روز کی مہلت۔ سرکاری ملازمین کا تنخواہیں بڑھانے اور سکیل ریوائز کرنے کا مطالبہ۔ ایپکا کا FC کالج انڈر پاس کے قریب احتجاج، حکومت کے خلاف اور مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ پولیس نے مظاہرین کو اسپیکر ہاؤس جانے سے روک دیا۔ لاہوریوں کے لیے صحت مند غذا کی فراہمی ترجیح۔ پور اتھارٹی کا شاہ جمال اور شادمان ٹاؤن میں آپریشن۔ ناقص اور غیر معیاری دودھ کی فروخت پر 5 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ 480 لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر تلف۔ معمولی نتائج پر 4 کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی ہنجروال میں چھاپہ مار کارروائی۔ اشرا کے تاجر محسن رحمان بٹ کے گودام سے سمگل شدہ ایرانی سیرامکس ٹائلز برآمد۔ ٹائلز کی مالیت 40 کروڑ روپے ہے۔ کسٹمز حکام نے سیرامکس ٹائلز قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ مسلم ٹاؤن کے زیر تعمیر کمرشل ہال مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران پولیس ٹیم بھی موجود رہی۔
महकमा जंगली हयात का रात गए टोलिंगटन मार्केट पर छापा, गैर कानूनी परिंदों की फरोख्त में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। गिरोह के कब्जे से परिंदे बाजियाब करा के आजाद करा दिए गए। फिजाई मुसाफिरों की जिंदगियां जाली पायलट्स के रहमो करम पर, PIA समेत निजी एयरलाइंस के 262 पायलट्स सेफ्टी रिस्क करार। कौमी एयरलाइन का 150 जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स को फिलफौर बरतरफ करने का फैसला, जबकि PIA तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तैयारा ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद था, पायलट्स ने लैंडिंग न करने की हिदायत को नजरअंदाज किया। पहले लैंडिंग की, फिर तैयारा उड़ा दिया। पहली लैंडिंग पर दोनों इंजन रनवे पर लगे, दूसरी लैंडिंग पर एक इंजन फेल हो गया। तैयारा हादसे के 32 रोज बाद 2 शहदा की शनाख्त मुकम्मल। कब्र कुशाई के बाद फ्लाइट स्टीवर्ड अब्दुल कयूम की जगह दफन किए जाने वाले कराची के अहमद मुश्तबा का जस्ते खाकी वरसा के हवाले, जबकि शहीद PIA मुलाजिम अब्दुल कयूम अशरफ की नमाज जनाजा सब्जाजार के ब्लॉक ग्राउंड में अदा। PIA अफसरान, मुलाजमीन समेत अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। नाकिस ट्रांसफार्मर की खरीदारी, ज्यादा इजलास बुलाकर करोड़ों रुपए की अदायगियां। FIA ने लेस्को के कंपनी सेक्रेटरी अवैस यासीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि तहकीकात के दौरान ही अवैस यासीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास तलब। FIA ने लेस्को चीफ से अवैस यासीन की तैनाती बारे तफसीलात मांग ली। आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इंतनाई जारी कर दिया। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में आटा चीनी बहरान से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पर जवाब जमा। अदालत ने आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। विफाक, पंजाब और FIA को 7 जुलाई तक की मोहलत। बेनजीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नाम तब्दील करना सूबाई दायरा इख्तियार के खिलाफ नहीं है? क्या बोर्ड के इतने इख्तियारात हो सकते हैं कि वो एक्ट की पावर्स को सलब कर दे? हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से 22 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। बच्चों से इजाफी फीस वसूली पर स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी फीसों के मुतालिक जवाब जमा। अदालत ने CEO एजुकेशन जाहिद परवेज को कल तलब कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब के रेडार पर आ गए। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून की सुबह 11 बजे तलब। लीगी रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज करने और मौजूदा जमीन से ज्यादा फरोख्त करने का इल्जाम है। पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन ने ज़राअत और खुराक पर हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हुकूमती अरकान ने पंजाब में आटा चीनी बहरान का जिम्मेदार साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को ठहरा दिया। सूबाई वजीर ज़राअत नुमान अहमद लगड़ियाल बोले, मार्केट कमेटी मॉडर्न बनाएंगे ताकि किसान की मुश्किलात दूर हो सके। असम्बली इजलास में 3 ऑर्डिनेंसेस में तौसी की गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास 25 जून दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरी दुनिया में एक मिसाल की सूरत जानती है। बदकिस्मती से आज इसका नाम एहसास प्रोग्राम रख दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया टॉक, बोले हुकूमत लॉकडाउन तो कर नहीं सकी, स्मार्ट लॉकडाउन क्या करेगी। कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफा, 24 घंटों के दौरान 762 नए मरीज। मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 35,582 हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के मजीद कमी। आइसोलेशन वार्ड्स में 627 मरीज ज़ेरे इलाज, 201 ICU और 114 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। कोरोना वायरस एक और मसीहा की जान निकल गया। जिना अस्पताल के सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल जान की बाजी हार गए। डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल गुज़िश्ता 37 रोज से बहरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ट सिटी, ये वो 7 इलाके हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं और
वो एरियाज हम बंद करेंगे ताकि ये वबा की फैलाव को हम रोकें। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मजीद इलाके लॉकडाउन करने का फैसला। रात 12 बजे के बाद गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल सिटी को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। मुतासिरा इलाकों को 3,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की तस्दीक के बाद सील करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, अस्पतालों में जगह और अद्वियात दोनों मौजूद हैं। SOPs पर अमल करने से कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आएगी। रात 12 बजे से बंद होने वाले इलाकों में मार्केट्स, शॉपिंग प्लाजे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सील्ड इलाकों की हुदूद में आने वाले सरकारी और निजी दफातर भी बंद रहेंगे। नकलो हरकत इकट्ठ पर पाबंदी होगी। ताहम जजेस, वकला और अदालती अमले को नकलो हरकत की इजाजत होगी। लॉकडाउन इलाकों में SOPs के मुताबिक करियाना स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी, बेकरी और फार्मेसी मुकर्ररा औकात के लिए खोलने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के लिए गलत डेटा का इस्तेमाल। मुतासिरा इलाकों के साथ साथ कोरोना से महफूज इलाके 10वें रोज भी बंद। हुकूमती नाअहली से मुतासिरा रॉयल पार्क की ताजिर बरादरी कारोबार बंद होने पर बिलबिला उठी। फौरी तौर पर लॉकडाउन खत्म करने और कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा। कोरोना वबा से निपटने के लिए लॉकडाउन के 3 माह मुकम्मल। दफा 144 और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 2,212 मुकदमात दर्ज। 8,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बंदिश और 4,500 शहरियों से जमानती बॉन्ड्स वसूल किए गए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम बारे गुफ्तगू हुई। उस्मान गुज़ार बोले, वतन अजीज कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। मुंतखब नुमाइंदगान मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए कोशिश करें। जबकि वज़ीर आला ने कोरोना फैलाव रोकने के लिए मजीद पाबंदियों के नताइज को हौसला अफजा करार दे दिया। सरदार उस्मान गुज़ार की अरकान असम्बली के वफ़द को मसाइल की हल की यकीन दहानी। कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। मसले के हल की बजाय वज़रा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कोरोना के खिलाफ हुकूमत का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की नाकिस कारकर्दगी से मुकदमात का दबाव, ताखीर से चालान जमा कराने, नामुकम्मल चालान भेजने, पेशियों पर हाजिर न होने पर सेशन जज लाहौर बरहम हो गए। CCPO को तलब कर लिया गया। रेस्टोरेंट्स मालिकान की सदर FPCCI से मुलाकात। होटल, रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड सेंटर खुलवाने के लिए ताउन की दरख्वास्त। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की मसाइल के हल के लिए ताउन की यकीन दहानी। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की नमाज जनाजा अदा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की इमामत में फरीद पराचा, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत असातिज़ा, तुलबा, मुलाजमीन और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला उस्मान गुज़ार, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इब्लाग़ आमा के साबिक डीन की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इजहार। मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी के लिए दुआएं। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का शक दुरुस्त निकला। दूसरी लेबॉर्ट्री से कराया कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। टेस्ट क्रिकेटर का फैमिली के दीगर अफराद का टेस्ट भी मनफी आने पर इजहार तशक्कुर। और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स लाहौर में इकट्ठे हो गए। कल खिलाड़ियों की दूसरी कोविड टेस्टिंग होगी। 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आने पर मुतबादिल खिलाड़ियों के नामों पर गौर जारी है। बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद मूसा, जफर गौहर, समी असलम, जुनेद खान, अदनान अकमल और दीगर खिलाड़ियों के नामों पर गौर किया जा रहा है।